Good morning, everyone. In the last class, we did talk about area under curve and recall if the curve y equal to fx is above x-axis, we are interested in the area bounded from the limit x is equal to a to x is equal to b. So this particular area is given by the integral a to b y dx, and y here actually referring to my function fx, to fx dx. And in a case if the curve entirely lies below x-axis, in that case the area will become a to b y dx only, just that the value will come out to be negative, so we'll take the modulus sign over here. And in the third case, as shown, we are interested in the area from a to b, but there is a point C where the behavior of this function is changing. So simple idea, from A to C, it is above x-axis, so y dx. But from C to B, since this is lying below x-axis, so this will be y dx, but with a modulus sign in the second integral only. So that was our basic fundamental idea we started with. So consider the following question. Find the, consider this question. Find the area of a region in first quadrant enclosed by x-axis, the line x equal to root 3y, and the circle x square plus y square equal to 4. So now there are few things which we need to understand. What all is given? First quadrant area, enclosed by x-axis, generally these are two are common thing, followed by x is equal to root 3y, which is of course going to be one straight line, and x square plus y square is equal to 4, which is clearly one circle. So before I sketch it, the graph that is important for me, but before I go with that, let us solve these two equations given to me to get their point of intersection. So this is a general rule. Before sketching, simplify the given two equations to get their point of intersection. तो the value of x को second equation में put किया, तो root 3y whole square plus y square is 4, which gives me 3y square plus y square. 4y square is 4, y square is 1, or y will be plus minus 1. Y plus minus 1, substitute in first or second, wherever you want. So using in first, x is root 3 into plus minus 1, that is x will be root 3 or minus root 3, which simply means point of intersections की अगर हम बात करें, so they will be now x is root 3 केस 1 में और y 1, नहीं तो y minus 1, फिर x अगर रख दिया minus root 3, but साथ में do remember we are talking in term of first quadrant only. So accordingly, we know which all points will get rejected. So take care of that now. So get the point of intersection. Also make sure whichever points you are getting, that they must satisfy both the given conditions as well. Now let me graph it. Initially I will begin with the circle. Circle is x square plus y square is 4. Clearly center is 0, 0 and its radius is 2 units.
So when I graph this circle, now this is very important. So prefer to use the compass and draw the neat circle of radius, say 2 units. So this would be simply 0, 0, and this would be 2, 0, 0, 2, and so on. No need to label other points because my focal area is the first quadrant. Now I have a line. Line is x equal to root 3y. First thing, clearly line passes through the origin. 0, 0 definitely lies on it. So line will pass through the origin. And at the same time, we already have their point of intersections with us. So definitely root 3, 1 lies on the circle and the line. So root 3 is roughly 1.73. 1.73 kahin yahan aa gaya and comma 1 somewhere here. So this is the point kaun sa? root 3, 1. तो इसीलिए neatness is very essential ताकि आइडिया लग जाए. And now let me draw this line. Symmetrical, ये line निकल गई. Now finally which area we need to find? Area enclosed in first quadrant and x-axis. So that is quite easy now to visualize. The required area is with x-axis and first quadrant. This area we need to find. Now here comes the very important idea. How I am going to evaluate this area? What I'll do to explain it, let me say focus mainly on the first quadrant portion only. So there is, say I'm zooming in this first quadrant. This is my circle and then I have the line. So line is something like this. This is the line. And from their point of intersection, this is 2, 0. This is the point of intersection root 3, 1. Now this is very important step to note. I need this whole area. But at the same time, from their point of intersection, if I draw the perpendicular, this is perpendicular being drawn. So the coordinate of this point would be root 3, 0. This is the x-axis only. So root 3, 0 perpendicular coordinates ho gaye. Now note carefully, this area प्लस इसके बाद वाला एरिया कौन सा? ये वाला एरिया. So when I focus on these two portions separately, please note from 0 to root 3, some different function is working. How come? From 0 to root 3, it is bounded, yellow curve, ये yellow portion which I am finding the area, it is bounded by the line, by this particular line, right? And from root 3 to 2, now it is the portion of that circle. So green area is bounded by actually by the circle, but limits are from root 3 to 2 only. So total area here will be from 0, this is my origin, yahan se start hue 0 se root 3 tak. Which curve is there? It is the y of line. लाइन ने बनाया और फिर प्लस क्या हो रहा है, ऐड क्या करना पड़ा?
√3 से लेकर आगे 2 तक ग्रीन एरिया, और ग्रीन एरिया किस कर्व ने बनाया है? दैट इज y ऑफ सर्कल। चेक करो, जब मैं √3 से 2 में बात कर रहा हूं तो ये वाला एरिया की बात हो रही है, और इसमें इस लाइन का कोई रोल नहीं है। इट इज बाउंडेड विद द हेल्प ऑफ सर्कल ओनली. So if this expression for area is clear, then the question is going to be very simple. So sketching the rough sketch neatly and appropriately, and then getting the expression for area. These two things are very, very important. So if you have any doubt in getting this area expression, please do let me know. Now, what is the meaning of this y of line? Line is my equation 1. So from this, what is y? x by √3. y की वैल्यू लिख दी, सिर्फ y की वैल्यू लिखनी है, और फिर √3 से 2 तक y ऑफ सर्कल. क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में y ऑफ सर्कल विल बी रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये लिख दिया. इसके बाद तो अब आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना बच गया. 1 बाय √3 बाहर, इसका इंटीग्रल, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा. 2 भी चलो कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to √3 प्लस √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? x by 2 into the same question plus a² by 2 into sin inverse x by a under the limit √3 से लेकर 2 तक आ गया. हमने इंटीग्रेट भी कर दिया है. अब लास्ट स्टेप क्या बच गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 2√3 1/2 √3. यहां जब मैं x की जगह √3 रखूंगा तो √3 का स्क्वायर, दैट विल बी 3 ओनली. माइनस तो 0 हो जाएगा, प्लस. अब बात करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की. इसकी अपर लिमिट माने 2 रखा. कई बार तो देखते ही पता चल रहा है क्या होगा. अगर जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा, सो 2 बाई 2 इंटू 0 हो जाएगा ये, प्लस ये 2 हो चुका है, और साइन इनवर्स में क्या बचेगा? 2 बाई 2 विच इज साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह √3 रख दीजिए, और जब √3 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स √3 बाय 2. When I simplify this, ये तो √3 बाय 2 आ गया, प्लस अंदर वाली टर्म को अगर ध्यान से देखें, ये वैनिश हो चुकी है, और ये बचा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाय 2. फिर माइनस √3 बाय 2 हो गया, एंड व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3 बाय 2 कब होता है? साइन √3 बाय 2 60 डिग्रीज, पाई बाय 3. ये और ये कैंसल हो गए, सो दैट विल बी पाई माइनस 2 पाई बाय 3, और विच इज पाई बाय 3. एरिया है स्क्वायर यूनिट्स. योर रिक्वायर्ड आंसर. I am not going to solve each and every question in future. एक बार हमने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, एरिया का इंटीग्रल एक्सप्रेशन लिख दिया, उसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेट करना बचेगा और लिमिट्स को पुट करना. सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बिफोर वी मूव ऑन, एवरीवन.
And any doubt to anyone, please do let me know. So check out this question, a very similar question for your homework now. सिर्फ values change हुई हैं, concept is exactly the same. Check this out, वही है first quadrant enclosed by x-axis, बस लाइन की इक्वेशन बदल गई और सर्कल की इक्वेशन चेंज है. Diagram and concept, everything will be the same. So do it in your homework. Hint दिया हुआ है कैसे करना है. First thing first, given दोनों इक्वेशंस को 1 and 2 कहकर सॉल्व कर लीजिए, गेट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फिर उसके बाद बस सॉल्व करना शुरू करेंगे. Check this out. Find the area of a region bounded by the parabola y equal to x square. ये रहा y equal to x square. और y equal to x square माने x square equal to y. It is referring to the upper parabola. And y equal to mod x. y equal to mod x. आपको पता है v शेप कर्व होता है, तो कोई ऐसा कर्व जाने वाला है, तो इनसे एरिया क्लियर हो जाएगा कि हमें ये वाला निकालना है. सिमेट्रिकल जाएगा बिल्कुल दोनों क्वाड्रेंट में. सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया. ऐसे इसे देखिए स्टार्ट करेंगे. कंसिडर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इक्वल टू मॉड x सिंपली बन जाएगा y इक्वल टू x. तो मैं सिर्फ फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कर रहा हूं इनिशियली. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और है y इक्वल टू x. सॉल्व देम टुगेदर. कैलकुलेशन आपके सामने है. इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 0 0 1 1. तो अगर अब मैं 0 0 से 1 1 तक ग्राफ भी बना लिया, ये पैराबोला निकल गया मेरा, ये पैराबोला, और ये ब्लू कलर से लाइन जा रही है y इक्वल टू x इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्लियरली ये होगी एक्चुअल में y इक्वल टू माइनस x. सिमेट्री से आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में ये रहा होगा -1 1. How will you get the area expression? Think logically. 2 times. एक तो जितना एरिया ये है उतना एरिया ये होने वाला है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का डबल कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर मैं ध्यान से विजुलाइज करूं, फिर मैं एक काम करता हूं, यहां मैं सिर्फ फोकस करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर. एवरीवन बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए कैसे डायग्राम मैं बना रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पैराबोला जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब लाइन चली गई और लाइन मेरे पास है y इक्वल टू एक्स की. तो मान लो ये लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स की. दिस इज द लाइन. इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमने देख लिया था 1 1, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर. ड्रॉ दी परपेंडिकुलर. सो यहां ये 1 0 आ जाएगा क्लियरली एक्स एक्सिस के ऊपर. अब इस चीज को बहुत ध्यान से फिर विजुलाइज करिए. मुझे चाहिए कौन सा एरिया? बाउंडेड बाय देम मींस दिस पर्टिकुलर एरिया इज रिक्वायर्ड. एक्चुअली मुझे ये वाला एरिया चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, इस एरिया के लिए इमेजिन दिस, लेट मी कैलकुलेट दिस होल एरिया. ये पूरा एरिया निकाल दिया, और इस एरिया में से अगर हम दिस पर्टिकुलर एरिया, कौन सा? नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला पर्टिकुलर, ये यहां से ऐसे दिख नहीं रहा तो मैं नॉर्मल कलर ही यूज करता हूं, ये ओवरलैपिंग से पता नहीं चलेगा.
तो व्हाट आई विल डू, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा एरिया निकाल देता हूं, ये वाला पूरा एरिया, और इस एरिया में से नीचे वाला जो एरिया बना था, नीचे वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, मैं माइनस कर देता हूं। ये वाला एरिया हटाते ही आई विल गेट माई डिजायर्ड एरिया। अब हुआ क्या, एक्स एक्सिस के साथ बिगर एरिया कौन सा बन रहा है, बिगर कर्व कौन सा था जो ऊपर की तरफ से निकल रहा है, y इक्वल टू एक्स है। बिगर कर्व का मतलब किसी भी केस में मान लो ये सिचुएशन है, दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपर कर्व हो गया, ये लोअर कर्व हो गया। अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया कर दीजिए, दैट्स इट। तो अपर कर्व का एरिया क्या हो जाएगा, सोचिए जरा ध्यान से। अब यहां पर लाइन ने जो बनाया, लाइन ने ये वाला एरिया बनाया 0 से 1 तक, 0 से लेकर 1 तक y ऑफ लाइन आ जाएगा, एंड ये वाला एरिया कौन सा होगा, नीचे वाला एरिया, फिर से सोचिए, ये दिस एरिया इज बाउंडेड बाय द पैराबोला। इस कर्व पे अगर देखो तो ये सिर्फ ब्लू कर्व ने बनाया है, ग्रीन वाला एरिया जो है, दिस एरिया इज मेड बाय ओनली ब्लू कर्व माने पैराबोला। तो माइनस कर दिया 0 से 1 y ऑफ पैराबोला। लिमिट यहां बाई चांस दोनों की सेम ही जा रही थी, तो अगर ये समझ आ गया तो बस इस एरिया का ट्वाइस करना है। और फिर व्हाट इज y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन ये रहा, x आ जाएगा, एंड व्हाट इज y ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट्स वेरी इजी नाउ टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर लिमिट। I hope the basic idea is clear. सिर्फ लॉजिक है छोटा सा, और साथ में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये विजुअलाइजेशन जहां मैंने किया है कि क्यों एरियाज, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, एरिया ऐड हुए थे। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे दो एरियाज को ऐड करना रहा है, लाइकवाइज दिस क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करा, 0 से √3 तक येलो कर्व, √3 से 2 तक ग्रीन वाला एरिया, तो ये दोनों पोर्शन अलग से ऐड करने रहे। अब यहां आपके सामने ही विजुअलाइजेशन रहा था कि नाउ इन दिस केस, ऊपर वाले डायग्राम में अगर मैं देखूं तो ब्लू कर्व ने जो एरिया बनाया, उसमें से जो रेड कर्व ने एरिया बनाया है नीचे विद एक्स एक्सिस, वो हटाना पड़ेगा, देन ओनली आई विल गेट द डिजायर्ड एरिया। रिड्यूस सिलेबस में थोड़ी सी कंफ्यूजन सीबीएसई ने किया है इन अ वे, वहां पर बहुत क्लैरिटी नहीं रहेगी। वैसे कहा गया है कि बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स इज नॉट इन आवर करिकुलम। तो अब बट ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया गया है, इसी सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं। तो अब ये भी बिटवीन टू कर्व्स हो रहा है, तो इसीलिए हम बहुत टिपिकल टाइप्स के क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज देयर इज स्काई इज द लिमिट, बहुत कुछ हो सकता है इस चैप्टर में। हम बहुत लिमिटेड और फंडामेंटल चीजों की ही बात करेंगे। चेक आउट दिस क्वेश्चन एवरीवन। सिंपल कंसेप्ट है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब इतना सा पढ़ते ही पहला चीज, इट्स अ पैराबोला, ये सिर्फ दिमाग में आना चाहिए, एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो पैराबोला एंड लाइन, तो रफ स्केच जो मैंने बनाया है वो बाद में,
सबसे पहले कंसीडर दीज टू इक्वेशंस एज 1 and 2, यूज एनी अप्रोच, सॉल्व देम टुगेदर। तो क्विक चेक कर लीजिए मैंने किस तरह से इसे सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, सॉल्विंग 1 and 2। 4y की जगह लिख दी एक्स स्क्वायर। इन सेकेंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x आ गया -1 and 2। केस 1 केस 2 देख लीजिए। तो when x is -1, y आ गया 1/4। केस 2 when x is 2, y आ गया 1। तो अब मुझे इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गए हैं। साथ में ये भी पता है x² = 4y अपर पैराबोला है और वर्टेक्स ऑब्वियसली ओरिजिन होगा। तो ये रेड कर्व ड्रॉ हो गया। तो ये पैराबोला मेरे पास ड्रॉ होकर आ गया। अभी लाइन को ड्रॉ करने के लिए इजीएस्ट वे क्या है सोचने का? ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा लोकेट कर लो, कहां होंगे? -1, 1/4 ये होगा, एंड 2, 1 कहीं यहां होगा। बस इन्हें ज्वाइन कर दिया, ये ब्लू कलर की लाइन आ गई मेरे पास। विच एरिया वी नीड टू फाइंड? लाइन एंड पैराबोला कहा है तो ये कॉमन सेंस से क्लियर हो जाएगा कि दिस एरिया इज रिक्वायर्ड। और अब ये एरिया कैसे निकलेगा? यूजुअल मेथड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस से ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, ड्रॉप दी परपेंडिकुलर्स। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए ये फाइनली एरिया एक्सप्रेशन -1 से लेकर 2 तक अपर कर्व माइनस सेम लिमिट में -1 से 2 तक लोअर कर्व। अपर कर्व का मतलब ये लाइन जा रही थी, लोअर कर्व का मतलब पैराबोला जा रहा है। एक्चुअल में ये क्यों करा फिर से एक बार देख लीजिए। -1 से 2 तक की मैंने बात करी है, तो मैंने पहले एक तरह से ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया। इमेजिन करिए ये ट्रेपीजियम बनेगा एक आपके पास, ऐसे मैंने ये एरिया निकाल दिया। इस एरिया में से अगर आप नीचे वाला एरिया, मतलब इस पैराबोला ने जो ये वाला बनाया था पोर्शन -1 से 2 तक, दिस एरिया, इसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो टोटल ट्रेपीजियम में से अगर नीचे वाला एरिया हट गया, डेफिनेटली आई विल गेट द डिजायर्ड शेडेड रीजन। तो ये एक्सप्रेशन आ गया एरिया का। वंस आई हैव दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, फिर तो सिंपल है, y ऑफ लाइन कैसे निकलेगा? यहां से y को एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे ही y ऑफ पैराबोला वो आप कर्व से निकाल लेंगे यहां से। इवैल्यूएट द लिमिट्स, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके बाद तो इजी है, कंप्लीट इन योर होमवर्क। Any doubt in visualization to anyone? Check this out. Find the area of the smaller region. अब keywords हैं smaller region, bounded by the ellipse. अब यह स्टैंडर्ड इलिप्स की शेप आपको याद होनी चाहिए, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। तो ये डायग्राम देखिए, यहां मैंने इसका ग्राफ बना के रखा हुआ है। एंड द स्ट्रेट लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। सबसे पहली बात, 2 इक्वेशंस हैं इलिप्स की और लाइन की।
solve these two equations simultaneously. तो जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ग्राफ देखते भी वैसे समझ आ रहा है, इनका क्लियरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएंगे a,0 एंड 0,b। तो या तो आप पूरा प्रॉपर एल्जेब्राइक अप्रोच से सॉल्व करके दिखाइए, और अदरवाइज क्लियरली देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर a,0 एंड 0,b। परफेक्ट, कोई नंबर नहीं कटेंगे, आप डायरेक्ट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विजुलाइज करके बता सकते हैं। अब कौन सा एरिया निकालना है? येलो वन, जो ये यहां पर शेडेड करके दिखाया है, स्मॉलर रीजन का एरिया पूछा था। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल, हम किस तरह से ये वाला एरिया देखिए निकालने वाले हैं। क्या होगा, पूरे इस एरिया में से, ये एरिया में से फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आ गया, इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया हटा देता हूं, नीचे वाला ये रिमूव कर दिया, ये वाला एरिया, आई विल गेट माई रिक्वायर्ड एरिया। तो बस इसी आइडिया को हमें अप्लाई करना है। तो हम 0 से a तक अपर कर्व यहां पर ये इलिप्स हो जाएगा, ये निकाल दिया, और इसमें से माइनस क्या कर दिया, 0 से a तक लोअर कर्व, और लोअर कर्व मतलब ये लाइन जा रही थी। So if the expression for area is clear, इसके बाद तो बहुत सिंपल है। एवरीवन प्लीज चेक दिस आउट, अगर कहीं भी डाउट है ये चीज कैसे लिखी गई है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। यस, दोनों की लिमिट सेम थी, 0 से लेकर a तक ही गया है अपर कर्व, मींस मैंने इलिप्स से ये पूरा एरिया निकाल दिया, और इसमें से लाइन ने जो भी पोर्शन लिया था उसको रिमूव कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। बस इसके बाद अब y ऑफ इलिप्स लिखना है। इलिप्स की इक्वेशन ये रही, ये समझ आ जाएगा कैसे हमने सॉल्व किया है, रीअरेंज किया, टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, इलिप्स का y आ गया, ऐसे ही इस लाइन का y निकाल दिया मैंने यहां पर। तो लाइन एंड इलिप्स के जो भी y की वैल्यू आ गई वो रिप्लेस कर देंगे, and we know how to integrate them. We already have learned the methods that can be easily simplified further. Another question for you. Check this out. Find the area of a region included between the parabolas y square equal to 4ax and x square is equal to 4ay. तो कई बार क्या होता है, ये तो चलो थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए a की टर्म्स में दे दिया, मान लो क्वेश्चन में a को 1 कर दूं, तो सिंपली पैराबोला कौन से आ गए, a की जगह अगर 1 कर दिया, y स्क्वायर इज 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो इस तरह से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, हमारे पास ये दो कर्व हैं, पैराबोला हैं दो। बिफोर आई ड्रॉ दिस रफ स्केच, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा। अब चेक करिए, जो मैंने ये सब करके दिखाया है वही आपस में किसी भी मेथड से सॉल्व करा, केस 1 केस 2, तो गेट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। ये तो कॉमन अलजेब्रा है आपकी 9th क्लास की।
Once I have got their point of intersections, अब मुझे बेसिक आइडिया पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट पैराबोला था, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपर पैराबोला है, एंड अकॉर्डिंगली आपने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस दिखा दिए, ये 0 0 एंड 4a, 4a, ये यहां निकाला था आपने। बस अब बच गया कौन सा एरिया निकालना है, क्लियरली बाउंडेड बाय देम, तो ये आई शेप्ड कर्व दिख रहा है, इसका एरिया बताना है। सेम विजुअलाइजेशन हो गया। प्लीज नोट दिस एक्सप्रेशन, अगर ये समझ आ गया कर्व को देखकर फिर तो इजीली आप कर लेंगे। क्या रूल बताया है, 0 से 4a तक, ये 4a कहां आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ड्रॉप दी परपेंडिकुलर, सो दैट 0 से 4a तक अपर कर्व, ऊपर से कौन सा पैराबोला जा रहा है, ये वाला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज माई फर्स्ट पैराबोला, इसलिए मैंने पैराबोला 1 और पैराबोला 2 यूज करा है, क्योंकि दोनों ही पैराबोलाज हैं। तो अपर कर्व और माइनस कर दिया ये वाला लोअर पैराबोला, लोअर कर्व का एरिया, तो टोटल एरिया में से अगर मैं नीचे वाला एरिया हटा देता हूं, आई विल गेट डिजायर्ड एरिया। तो बस वो एक्सप्रेशन लिखना जरूरी था, समझना। इसके बाद तो पैराबोला 1 और पैराबोला 2 की इक्वेशंस लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेट। Learn this answer also, 16/3a square स्टैंडर्ड आंसर की तरह बन जाता है। बेनिफिट क्या है इस आंसर को याद करने का, अगर मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता, ये वाला जो ऊपर दिखाया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y, क्लियरली a इज 1, तो a 1 रख दो आंसर में, तो इन दोनों के बीच का एरिया क्लियरली आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हियर इज द होमवर्क फॉर यू। तो जितना भी डिस्कस किया है उसी के ऊपर बेस ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई कैन नॉट फोर्स एनीवन, बट बाकी आपकी चॉइस है, अगर अच्छा करना चाहते हैं सो प्लीज डू दीज 5 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क टुडे। Everyone please mark your attendance and then you can leave the class. And from next week Monday onward बीच बीच में मैं 2 या 3 दिन 1:30 पे भी क्लास लूंगा, मीन्स एक नॉर्मल जो रेगुलर पीरियड है और मे बी ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस। और मैं सिलेबस को 2 दिन में भी करवा सकता हूं, वो मैं नहीं चाहता हूं कि समझ के करें, सो थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम देना पड़ेगा। Please mark your attendance and then you can leave the class. Thank you very much. Good day.